Sat Shri Akal, Teji Ayan. Welcome to Heritage Stories and Performing Arts. I'm Sarita Nair, founder of HSPA. And आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से एपिसोड 5 सीजन 3. As many of you rightly guess, आज की कहानी है सड्डे अपने पंजाब तो. That's right. We had shared 2 clues for you to guess the state of origin of our story for this episode. Clue number 1 was that this state saw the maximum number of migration ever recorded in history. And as you rightly guessed, it's Punjab. Clue number 2 was that this particular place or city is named after a emperor, Emperor Lodhi. Yes, the answer is Ludhiana. Ludhiana is also known as the Manchester of India. It's also known as the Ben's city, famous for its textiles as well. But today we are going to look at another very important aspect of Ludhiana. And sharing that with us, the story of an unsung hero is Vikramjit Singh Ruprai. Let me tell you a little bit about Vikramjit. Vikramjit Singh Ruprai is an author and historian who left his 14-year-long IT career to turn into teacher trainer and a heritage activist. He established Heritage Shala to set up heritage labs in schools where students are taught routine subjects through liberal arts and by using examples from history. How interesting is that? I wish I had someone to teach me history like that. He is 5 times TEDx speaker and a consultant to many government and non-government organizations. He is currently a visiting faculty member at the National Institute of Fashion Technology and the North Cap University. In past, he has served as an auditor for UNESCO, Aga Khan Trust for Culture, and the Education Quality Foundation of India. And with that, I would like to welcome Vikramjit. Thank you for joining us. Thank you. Welcome to Itihas Ke Panno Se. Thank you. And the stage is all yours for you to share the story. Thank you. Okay. So my story comes from Punjab. I am glad that I'm able to share this on this platform. This is the story of my own community, my own family. I am going to share the story of Kuka movement, the movement that shook British, but history has forgotten it. Time has forgotten it. So let's see what the story unfolds. महाबली रंजीत सिंह होया पैदा नाल जोर दे मुल्क हिलाए गया मुल्तान कश्मीर पेशावर चंबा जम्मू कांगड़ा कोट निवाए गया फिर देश लद्दाख ते चीन ताई सिक्का अपने नाम दा चलाए गया शाह मुहम्मदा जान 50 बरसा चंगा रज के रज कमाए गया रंजीत सिंह द ग्रेट रूलर ऑफ पंजाब लेकिन वो कब तक राज करते सबका वक्त आता है उनका भी आया 1839 1839 महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके जाने के बाद पंजाब की जो हालत होती है शाह मोहम्मद लिखते हैं कि अज हुंदी सरकार ते मुल पौंदी जेड़ी खालसे ने तेगा मारियां ने कि शाह मोहम्मद एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नु हारियां ने पंजाबी सिपाही जो ना सिर्फ अंग्रेजों से बल्कि हर तरह के दुश्मन से एक के बाद एक जंग जीतते जा रहे थे अचानक से हारना शुरू हो गए और हर हार पहले से ज्यादा डरावनी होती थी एक लड़ाई तो ऐसी हुई जिसमें सिख फौजी आकर खड़े हुए हैं और सामने से अंग्रेज आ गए सिख फौजियों ने अपने जनरल को बोला कि अंग्रेज आ गए हैं और अब हम लड़ाई शुरू करते हैं और हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं जनरल ने कहा नहीं ये तो थोड़े से सिपाही हैं याद है ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या कहा था 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम तराऊं अरे इतने से सिपाहियों से हम क्यों लड़ेंगे लॉर्ड डलहौजी आने वाला है ज्यादा सिपाही लेके 12,000 फौज लेके उनसे लड़ेंगे हम बैठ गए सारे सिख चुपचाप फौजे खास महाराजा रंजीत सिंह की महाराजा जा चुके हैं अब लेकिन पीछे वो गद्दार बचे हैं जो अंग्रेजों के साथ मिल चुके हैं और अब पूरी फौज उनके हाथ में है
लॉर्ड डलहौजी आ गया। लॉर्ड डलहौजी ने अपना पूरा सेटअप लगाना शुरू कर दिया, तोपें लगानी शुरू कर दी। तो सिख फौजियों ने अपने जनरल को बोला कि अब तो हमें लड़ने के लिए इजाजत दे दीजिए, अगर इसने अपना सेटअप पूरा कर लिया फिर हम नहीं जीत सकते। मना कर दिया गया। लेकिन अब सिख फौजियों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बिना अपने जनरल की परमिशन के उन्होंने हमला किया, लॉर्ड डलहौजी को हराया और लॉर्ड डलहौजी वहां से भाग गया। जब सिख जनरल ने यह देखा कि यहां तो काम खराब हो गया है, तो उसने तोपें चलवा दी अपने ही सिपाहियों पे, अपने ही सिपाही मार डाले और लॉर्ड डलहौजी को 12 मील दूर से वापस बुलाया, ये कह के कि आ जाओ, हमने सिपाहियों को जो तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें हटा दिया है, अब सब तुम्हारी फेवर में है, आ जाओ। उनको वापस बुलाया खुद सिख जर्नैल ने, और वहां पर अंग्रेजों का झंडा झुलाकर ये बोल दिया, द एंग्लो सिख वॉर हैज बीन वॉन बाय द ब्रिटिश एंड एज अ रिजल्ट पंजाब इज नाउ अंडर द ब्रिटिश। कोहिनूर से लेके हर चीज अंग्रेजों को दे दी गई, क्योंकि वो जी जंग जीत गए। ये किसी को नहीं बताया गया कि तोपें तो अपनों ने ही चलाई थी। और ऐसे और बहुत सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से महाराजा रंजीत सिंह की फौज के जो सबसे वफादार सिपाही थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, फौज छोड़ छोड़ कर जाने लग गए। कोई साधु, ज्यादातर तो साधु ही बने, कोई खेती बाड़ी में जुट गया, कोई किसी ने सन्यास ले लिया, सब इधर उधर बिखर गए, पूरी फौज बिखर गई। ऐसे ही एक कंवर नौनिहाल सिंह रेजिमेंट 12 नंबर रसाले के अंदर एक सिपाही राम सिंह, वो भी फौज छोड़ के मुदकी की जंग के बाद दरिया में अटक के, दरिया में अपनी बंदूक फेंक कर आ गए अपने गांव लुधियाना के पास 20 किलोमीटर दूर भैणी के अंदर। भैणी गांव में आकर बैठे और अपनी पाठ पूजा में विलीन हो गए। 1845 में ये फौज को छोड़ देते हैं, पाठ पूजा में विलीन हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, एक सन्यासी बन जाते हैं। और इनके आसपास के गांव के लोग आकर जब इनके पास बैठते हैं तो उनको इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक छोटी सी कम्युनिटी यहां से शुरू हो जाती है। वो इन सबको बताते हैं कि आपको प्रभु के नाम में विलीन होना चाहिए, आपको गुरु के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु ने जो हमें संदेश दिया है, गुरु नानक से चलते हुए गुरु गोविंद तक जो हमें संदेश मिला है, वो संदेश बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, बहुत ताकतवर है। लोग जैसे जैसे उनके साथ जुड़ते गए, 1857 का टाइम आ गया और इनके साथ अब हजारों लोग जुड़ चुके थे। 1857 की बैसाखी को, यानी 13 अप्रैल को, इन्होंने 5 अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अमृत चखाया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे गुरु गोविंद सिंह जी बताकर गए थे। और पंजाब में जहां पर सिख करीब करीब खत्म कर दिए थे अब अंग्रेजों ने, इन्होंने सिक्खी दोबारा से शुरू कर दी और इन सिखों को पूरे पंजाब में भेजा गया, जगह जगह, ताकि वो लोगों को समझाएं। क्योंकि जब इन सिखों को तैयार करना था, ये 5 प्यारे तैयार करने थे, उससे पहले राम सिंह जी ने जाकर ढूंढा, अपने कुछ शिष्यों को भेजा कि जो भी ऐसे सिख हैं पंजाब में जो गुरु गोविंद सिंह जी की बताई मर्यादा पे पूरी तरह से पालन करते हैं, उन्हें ढूंढ कर लाइए। जानते हैं, सिर्फ 2.5 सिख मिले थे। 2.5 क्यों? क्योंकि 2 तो पूर्ण सिख थे, एक आदमी ऐसा था जो लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। और गोविंद सिंह जी ने कहा था कि किसी से ब्याज मत लेना, जब आप उसे उधार दो, आप किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। पर वो लेता था ब्याज, तो उसको आधा सिख गिना गया है। तो जब 2.5 सिख मिले तो बाबा राम सिंह बहुत परेशान हो गए। इन्होंने वही मर्यादा का इस्तेमाल करके 5 प्यारे तैयार किए, अमृत तैयार किया, इनको पिलाया और गुरु गोविंद सिंह जी का जो खालसा था उसे फिर से शुरू किया। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसूल बताए थे, उन उसूलों का पालन फिर से शुरू किया। जो ककार गुरु गोविंद सिंह जी ने बताए थे कि लंबे केस रखने हैं, कड़ा पहनना है, हाथ में कछहरा पहनना है, कंघी रखना है, वो सब दोबारा से किए। एक चीज उन्होंने बदल दी, वो भी हल्की सी। उन्होंने कहा कि हम बड़ी तलवार नहीं रखेंगे, हम छोटी तलवार रखेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का हुक्म है, तलवार तो हम जरूर रखेंगे पर बड़ी तलवार नहीं, ऐसी तलवार नहीं जिससे वार हो सके, क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, हम शांति से ये सारा काम करेंगे।
हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम अमन पसंद है, इसलिए कपड़ा भी सिर्फ सफेद रंग का पहनेंगे, सफेद पगड़ी, सफेद कुर्ता पैजामा या बिल्कुल हल्के रंग का, कोई गाढ़ा रंग नहीं पहनेंगे, नीला काला तो बिल्कुल भी नहीं, लाल नहीं, हल्के से हल्का रंग पहनेंगे। ये शुरू हुआ सिलसिला, चलता गया, आने वाले सालों में और लोग साथ जुड़े। कुछ ही सालों के अंदर जब 10-12 हजार लोग इनके साथ जुड़ गए तो ये एक बहुत बड़ा सेक्ट बन गया और बाबा राम सिंह जी को सतगुरु राम सिंह कह के बुलाया जाने लग गया। इनकी सिक्खी सेवकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सतगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखों को यह बोला कि अंग्रेज भारत में आया बहुत पहले और अब जब वो पंजाब में आ चुका है तो यहाँ पर जो काम वो कर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। ना सिर्फ उसने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया है, उसने हमारा कल्चर, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज कर दिया है और जो अंग्रेजों के तरीके से नहीं चलता उसे परेशान किया जाता है। आने वाला वक्त ऐसा हो जाएगा जब अगर आप अंग्रेजों के तरीके से पूरी तरह नहीं चलोगे तो आपके लिए देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपस में लड़ाई भी करवा रहा है। इनफैक्ट ये चीज तो जब शाह मोहम्मद ने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में लिखा और जब जंगनामा लिखा तो उस टाइम पर उन्होंने अपने जो जंगनामा सिंगाते फिरंगिया की जो शुरुआत की है, जिसके कुछ वर्सेस मैंने आपको शुरुआत में सुनाए, उसकी शुरुआत का जो पहला स्टैंजा है उसमें वो भी यही जिक्र करते हैं। और अभी अंग्रेज पूरी तरह से आया नहीं है, अभी तो पहली लड़ाई हुई थी तभी ये जंगनामा लिख दिया गया था। उसमें भी वो कहते हैं कि राजी रहन बहुत मुसलमान हिंदू, राजी रहन बहुत मुसलमान हिंदू और सिर दोहा दे ऊपर आफत आई कि अब मुसलमान हिंदू यहां पर हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब हमारे सर पे एक आफत आ गई है। कहते ने पंजाब विच कदी नहीं सी दूसरी जात आई। पंजाब में एक जात हुआ करती थी हिंदू मुसलमान की, ये दूसरी जात अंग्रेज की आ गई है। अब इनके सर पे आफत आई है, अब देखना क्या होगा, अब हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। ये बात उन्होंने उस समय कह दी थी जब अंग्रेज अभी तक पंजाब में घुसा भी नहीं था। और अब इस बात को तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, अब वो चीज पंजाब में फैल चुकी है। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं। सिखों को एक अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश कर दी गई है कि ना तुम हिंदू ना तुम मोमिन, तुम एक अलग हो और सबको आपस में लड़ना है। प्यार मोहब्बत दूर कर दी गई है। तो सतगुरु राम सिंह जी ने सबको ये समझाया कि जब तक तुम अंग्रेजों का बहिष्कार नहीं करोगे ये ऐसे ही चलेगा और ये बढ़ेगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। 1860 22 सूबे तैयार किए गए जिनको पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, जिन्होंने पंजाब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया और लोगों ने बजाय अंग्रेजों को रिपोर्ट करने के इन्हें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक ऐसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जिससे अंग्रेज बुरी तरह हिल गए। इन्होंने कहा कि अंग्रेज ने जो भी चीज इंट्रोड्यूस की है आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नामधारी चाय नहीं पीते क्योंकि चाय अंग्रेज लेकर आए थे। चीनी नहीं खाते, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी देसी चाय है, जड़ी बूटियां हैं, उन्हें उबाल के पीते हैं। बल्कि दूध में सौंफ, तो इट्स अ फेनल सीड बेस्ड ड्रिंक, सौंफ को उबाल के पिया जाता है। कभी आपने सुना होगा ये शराब नहीं पीता, ये सूफी है। वो सूफी जो है इट इज एक्चुअली अ बास्टर्डाइजेशन ऑफ द वर्ड सौंफी। ये करप्शन है एक वर्ड की। सौंफी का मतलब होता है वो शख्स जो दूध में सौंफ उबाल के पिए, शराब ना पिए, क्योंकि ये पंजाब था। ये वर्ड पंजाब से आता है क्योंकि पंजाब में वो शराब नहीं पीते थे, दूध में सौंफ उबाल के पीते थे। पूरे पंजाब में वही हो गया, ना चाय पीते थे ना शराब पीते थे। तो ये बात मशहूर की गई कि ये सूफी है या ये सौंफी पहले बोला जाने लगा और फिर बाद में वो वर्ड करप्ट होकर सूफी हो गया कि शराब नहीं पीता तो सूफी है। और ये एक लानत की तरह इस्तेमाल किया जाने लग गया वर्ड, ये भी कोई आदमी है, अरे सूफी है ये तो शराब भी नहीं पीता, चाय तो क्या ही पिएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपनी चीजें इंट्रोड्यूस करनी थी ना, उनको एनफोर्स करना था, वो नहीं कर पा रहे थे। पंजाब पूरा सौंफी हो चुका था, सफेद कपड़ों में आ चुका था। अंग्रेजों ने जो नहरें खोदी थी उन नहरों का पानी खेतों को नहीं लगाया जाता था। अंग्रेजों ने जो पेड़ लगाए थे उन पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा हुआ जाता था, क्योंकि जब आप पेड़ के नीचे खड़े होगे तो पेड़ लगाने वाले को आप आशीर्वाद दोगे, असीस दोगे, क्योंकि आपको पेड़ की छाया मिल रही है। पेड़ अंग्रेजों ने लगाए उसकी छाया तक नहीं ली जाती थी।
अपना एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया, अपना पोस्टल सिस्टम तैयार किया, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार किया, बैलगाड़ियां हर गांव में अरेंज कर ली कि इस गांव से दूसरे गांव जाना है, ये लोग मुकर्रर कर दिए, ये बैलगाड़ी से आपको पहुंचाएंगे, वहां से आप दूसरी बैलगाड़ी ले सकते हो। पूरे पंजाब में एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया कि अंग्रेज बुरी तरह से हिल गए और उन्होंने अल्टीमेटली जब ये पूरी मूवमेंट अपनी पीक पर पहुंची तो अंग्रेजों ने तो यहां तक ऑर्डर कर दिया था कि अगर कोई शख्स सफेद कुर्ते पजामे और ऐसी गोल सफेद पगड़ी में दिख जाए, बिना सवाल पूछे गोली मार दो, क्योंकि अब और कोई तरीका नहीं था लड़ने का। तो खेतों में जो लोग काम करते थे, तो पंजाब की नॉर्मल ड्रेस है, लेकिन खेतों में काम करते हुए भी अगर कोई ऐसी पगड़ी में दिख गया, कुर्ते पजामे में दिख गया, कशहरे में दिख गया, जो कि एक आइडेंटिटी बन गई थी नामधारियों की, कुकों की, उसे गोली मार दी जाती थी। और ये इस स्टेज पर इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने कुछ और ऐसे बड़े काम कर दिए थे जिससे जो ब्राह्मण तबका है पंजाब का, वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। पंजाब वो जगह है जहां पर सती प्रथा, दहेज की प्रथा, छुआछूत, ये बहुत ज्यादा चलता था। गुरु राम सिंह जी ने कहा कि ये सब बंद, बिल्कुल बंद, सती प्रथा नहीं चलेगी, और पंजाब में तब से सती प्रथा बंद है। उन्होंने 1863 में 1863 के अंदर 4 जनवरी को पहली इंटरकास्ट मैरिज करवाई। तो देश में इंटरकास्ट मैरिजेस उससे पहले भी हुई हैं, लेकिन वो किसी ना किसी पॉलिटिकल रीजन से हुई हैं या चोरी छुपे हुई हैं। ये एक ऐसी इंटरकास्ट मैरिज थी जिसको ना सिर्फ पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, बल्कि फिर ये एक नॉर्म बन गया। विडो रीमैरिज करवाई, यानी कि जो विधवा हो जाए उसकी दोबारा शादी हो सकती है। और मास मैरिजेस शुरू करवाई, ताकि ऐसा ना हो कि एक शादी हो रही है, अगर 4 परिवार हैं जिनकी शादियां होनी है, सब एक साथ शादी करो। क्योंकि शादी के ऊपर उन्होंने एक और कंडीशन रख दी थी, शादी में कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, बिल्कुल सादगी के साथ बैठना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शादी में 13 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकता। आज तक नामधारी उसको फॉलो करते हैं। 13 रुपए से ज्यादा एक शादी में हम खर्च नहीं करते। सारा खर्च गुरुद्वारे का होता है, गुरुद्वारे में ही लंगर होता है, जिसमें शादी दुल्हा दुल्हन या उसके परिवार कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और इसलिए सभी शादियां एक जैसी होती हैं, कोई अमीर कोई गरीब, कभी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर किसी ने दहेज लिया या दिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसे कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर आप दहेज लेंगे देंगे तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से करेंगे, कोई अमीर कोई गरीब हो जाएगा। पूरी सोसाइटी में एक बराबरी लेके आनी थी। औरतों को अमृत चखाया गया पहली बार, फीमेल बैप्टिज्म, क्योंकि औरतों को मर्दों के बराबर खड़े होने के लिए कहा गया। ये सब चलता रहा और बहुत आगे पहुंच गया। पंडितों को जरूर इससे परेशानी हुई, वो अंग्रेजों में के थानों में जा जाके कंप्लेंट्स कर रहे थे, और अंग्रेज खुद परेशान थे कि ये यहाँ के लोग तो हमारी नहीं सुनते, अरे हम तुम्हारी क्या सुने। वक्त आ गया 1871 का। 1870 तक आते आते 10 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों को तरीका मिल गया था। अंग्रेजों ने पंजाब में जगह जगह बुच्चड़ खाने खोल दिए। एक बुच्चड़ खाना तो अमृतसर में श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में खोल दिया गया। आज जो आप गोल्डन टेम्पल श्री दरबार साहिब की परिक्रमा देखते हैं हरिमंदिर साहिब की, जिसमें चारों तरफ एक 4 दीवारी है, आर्चिस बनी हुई है, कॉरिडोर है, ये वैसी नहीं हुआ करती थी। एक सरोवर था, सरोवर के बीच में मंदिर था जिसपे महाराजा रंजीत सिंह ने सोना चढ़ाया, और उस सरोवर के आगे बाजार शुरू हो जाता था। कोई 4 दीवारी नहीं थी जो बाजार को और गुरुद्वारे को अलग करे, बस ये पानी का एक कुंड हुआ करता था जिसके चारों तरफ एक बाजार चलता था। तो जो माई सेवा बाजार हुआ करता था उस जमाने में, वो पूरा बाजार अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया बुच्चड़ खाने में, और वहां पर गायों का कत्ल किया जाने लग गया। क्योंकि वहां ज्यादातर जो बुच्चड़ लाकर बसाए गए वो सारे मुसलमान थे। सूरों को नहीं मारा जाता था, बकरों को तो जरूर मारा जाता था, लेकिन खूब गाय भी मारी जाती थी। और दरबार साहिब की परिक्रमा में, गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा में गाय को मारना, ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ी, सिखों के मुंह पे तमाचा था, क्योंकि सिख भी गाय को उतना ही पूजनीय मानते हैं जितना कि हिंदू। बहुत कंप्लेंट्स हुई, बहुत रिक्वेस्ट हुई, लेकिन ये तो अंग्रेजों का तरीका था, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई सिख हमारे खिलाफ खड़ा तो नहीं हो रहा है अभी। नामधारियों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 3-4 नामधारी सिख वो वहां गए, और जब उन्होंने देखा कि किसी की कुछ नहीं चल रही है, तो रात के समय उन्होंने उन बुचड़ों का कत्ल कर दिया।
और अपने आप को जाके सुबह अंग्रेजों के हवाले कर दिया कि हम इनको मार के आए हैं, आपने हमें जो सजा देनी है दे दो। अब अंग्रेज परेशान कि भाई ये पहला ऐसा आदमी है जो गुनाह करके हमें गुनाह का पता चले, खुद ही उससे पहले आगे हमें बोल रहा है, क्या करें इनका हम। इनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई और इन्होंने आगे शर्त रख दी कि फांसी पर तो हम चढ़ेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम पहले दरबार साहब में माथा टेकेंगे, वहां पर हम अपने हाथ से प्रसाद बनाकर बांटेंगे, पाठ करेंगे, उसके बाद हमें चमड़े का नहीं रेशम रेशम का रस्सा चाहिए, आप रस्से का इंतजाम कर दीजिए, हमें बता दीजिए किस पेड़ पर है, हम जाके खुद बांध के लटक जाएंगे, कोई अंग्रेज हमें हाथ नहीं लगाएगा और हम अपने तरीके से मरेंगे, और बाद में भी जब हम मर जाएं अंग्रेज हाथ नहीं लगाएगा, हमारे ही आदमी, हमारी ही कौम के आदमी हमें हाथ लगा सकते हैं। वही हुआ, इन्होंने अपने आप को फांसियां दी और मुझे नहीं लगता इतिहास में ऐसा कोई और किस्सा गुजरा होगा जिसमें किसी ने खुद को फांसी दी होगी। इन्होंने खुद को फांसियां दी क्योंकि इन्होंने अपने ही गुरु के खिलाफ जाकर कत्ल किया, हिंसा की। पर ये किस्सा यहां नहीं रुका, और बुच्चड़ खाने खोले गए। मलेर कोटला जो मशहूर है अपने अमन और चैन के लिए, मलेर कोटला के नवाब जो खड़े हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों के को बचाने के लिए, हा का नारा बहुत मशहूर है, कभी मौका मिला वो भी किस्सा सुनाएंगे। पर उन्होंने मलेर कोटले जैसे इलाके में बुचड़ खाने खोले जहां पर ज्यादातर गायों को मारा जाता था, वहां भी कुछ नामधारी सिखों ने जाके रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि प्लीज आप इन गायों को इतना मत तंग करिए, उन्हें मारा पीटा जा रहा था और टॉर्चर करके उनको मारा जा रहा था, कि ऐसे तो मत करिए, कम से कम इन्हें टॉर्चर तो मत करिए, मासूम जानवर है। लेकिन नहीं सुनी गई। गुस्से में आके एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हुआ नामधारियों का और उन्होंने उन सारे बुचड़ों को मार दिया। अंग्रेजों के पास जाके थाने में जब उन्होंने अपने हथियार रखे तो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कावन तो घबरा गया, अरे मैं करूं क्या, मेरे सामने 100 लोग आकर खड़े हो गए हैं, मेरे पास तो इतने सिपाही भी नहीं है थाने में, और वो आराम से खड़े हैं कि जी हमने इन लोगों को मार दिया है, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। अरे ना जेलें हैं, ना हथकड़ियां हैं, ना उतनी रस्सियां हैं, 100 लोगों को रखेगा कहां, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, कैसे संभालता वो। उसे कुछ समझ नहीं आई, उसने फटाफट इनको पकड़ा, रात तो किसी तरीके से गुजारी, अगले दिन सुबह इनको मलेरकोटले में उस जगह पर ले गया जहां पर सारा कत्लेआम हुआ था, नजारा देखा, वो खुद भी घबरा गया, खूनो खून लथपथ लाशें पड़ी हुई है कटी फटी। उसने कहा इन सबको पकड़ के तोपों से उड़ा दो। 7 तोपें पटियाला से मंगवाई गई, महाराजा पटियाला ने तोपें भेजी, वो हमेशा से अंग्रेजों के साथ रहे हैं। 7 तोपें सामने की तरफ लगाई गई, 2 साइडों को लगाई गई ताकि कोई बचाने आए तो उसे भी मार सके। और जब तक ये तोपें तैयार होती 7 आदमी आगे खड़े थे, चलाओ तोप। 7 के 7 तोपों से उड़े, जब तक धुआं छटा और जो खून के छींटे हवा में थे वो जमीन पे गिरे, 7 और आदमी आगे खड़े थे, चलाओ तोप। 7-7 करके कितने ही वहां शहीद हुए, जब तक कि वो मौका नहीं आ गया जब एक 12 साल का बच्चा आके सामने खड़ा हो गया। और डिप्टी कमिश्नर कावन की बीवी घबरा गई, उसने कहा अरे कावन तुम इतने छोटे से बच्चे को मारोगे, ये कैसे हो सकता है। तो कावन कहता है ठीक है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, बस ये मुझे ये बोल दे कि ये राम सिंह का सिख नहीं है और गलती से यहां आ गया है। वो 12 साल का बच्चा कहता है ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन मैं कावन के कान में बोलूंगा। तो कमिश्नर कावन नीचे झुका सुनने के लिए, उसकी लंबी दाढ़ी थी, इस बच्चे ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली, इतना चालाक बच्चा। कहता बिल्लिया फेर कहेगा मैं गुरु राम सिंह दा सिख नहीं, मैं गुरु राम सिंह दा पक्का सिख हाँ, अपनी मर्जी नाल आया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि मैं सिख नहीं हूं। अरे मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मैंने बुच्चड़ मारे, कर ले तूने क्या करना है। इतिहास गवाह है, उस बच्चे से वो अपनी दाढ़ी नहीं छुड़वा पाया, पहले उसके हाथ काटे गए, फिर उसकी टांगे काटी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई। खुद कमिश्नर कावन इतना घबरा गया था कि वो वहां से चला गया और उसने कहा कि बाकियों में जो करना है कर दो। सिपाहियों ने बाकियों को फांसियां लगा दी, तोपें वहीं पे बंद कर दी गई। गुरु राम सिंह जी को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, उसी बंगले में रखा गया जहां बहादुर शाह जफर को एक जमाने में रखा गया था, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि ये पंजाब के अगले राजा हैं, उन्हें राजा राम सिंह लिखा गया रिकॉर्ड्स में। और पीछे जिस गांव में ये सारा कुछ शुरू हुआ था, उस गांव की एक 4 दीवारी हुआ करती थी, उस गेट को 12 साल के लिए अंग्रेजों ने बंद कर दिया कि जो लोग अंदर हैं भूख प्यास से मर जाएंगे।
जो लोग बाहर हैं उनको हम गोलियों से मार देंगे। 12 साल तक किसी तरीके से चोरी छुपे आसपास के लोग कुछ रसद पहुंचा दिया करते थे, कुछ अंदर उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया। 12 साल तक इस कम्युनिटी ने उस छोटे से गांव की चार दीवारी में, बंद चार दीवारी में जो जेल में तब्दील कर दी गई थी, ये सरवाइव किया। और 12 साल बाद जब वो पुलिस चौकी हटी, दरवाजे खुले, ये लोग बाहर निकले, तो पंथ, ये कम्युनिटी, ये कूका फैमिली आगे बढ़ी। और मेरा परिवार और मेरे जैसे करीब 2 लाख और परिवार वहीं से निकल के आते हैं। तो ये थी मेरी कहानी कूका मूवमेंट की, जिसे अब इतिहास ने करीब करीब भुला दिया है। इन्हें कूका इसलिए कहा जाता है क्योंकि गली गली गांव गांव जाके ये कूक के, चीख पुकार करके